Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Haldia Institute of Technology. Please subscribe to the channel and press the bell icon for getting continuous notification. Today is a nice event, and the name of the talk exactly it is proposed by Madam. It will be better. So it was a nice name. We were unable to find the name. What will be the name of this webinar, or simple you can say the special talk? We just name it. So I'd like to welcome our HOD Department of HOD, Professor Deepak Kumar Jana sir, and request please you welcome Madam Minu Madam, and Madam will continue the session. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, Professor Due. So, good morning, all of you. So, it gives me immense pleasure to welcome you all in this webinar. That today we have decided the topic of the webinar is parenting and mentoring, UHB perspective. So, in this session, I like to introduce Professor Minu Mehta. He is a professor and academic head of IES Management College and Research and Center. He is basically from Mumbai. So I request Professor Minu Mehta, please deliver your lecture for our students, faculty members, and here some guardians are present in this webinar. Please, Madam, please continue your session. This session is yours. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And thank you for calling me again. In fact, now in my head, I am like a faculty member for HIT. So I feel as if I'm part of all of you and sitting in the staff room and taking this session. So thank you so much, sir. And can I share my screen, sir, if it's okay? Yes. Yeah. So, good morning to everyone and namaskar from Mumbai. I am Minu Mehta, and HIT Haldia has been very kind to me. Thank you, Dubey sir. Thank you, Jana sir. Thank you, Anupam sir, for inviting me again. As sir said, we are basically going to talk about universal human values. However, today the focus of our discussion is going to be parenting and mentoring. So, I want to start the session with a little bit of a disclaimer. I want to ask all the people sitting in the audience, how many of you are willing to believe whatever I am saying? Can someone help me with the chat, or can someone help me with the show of hands? Because I will not be able to access the chat, or is everyone willing to believe me? Is everyone willing to accept whatever I have to say? Can I have some faculty members helping me out? They can raise their hands. How many of the participants are willing to believe me and accept whatever I have to discuss today? Can I have a show of hands? And sir, can you tell me if many hands are raised? Ma'am, many hands are raised. Okay. 2 hands I can see. If many hands are raised and people have responded on the chat, आप लोग जो भी मैं आपको बोलने वाली हूँ उसको एक्सेप्ट करने के लिए और उसको मानने के लिए तैयार हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए. I want to start my presentation with a disclaimer. And what is this disclaimer? Whatever we are going to discuss today, उसमें से कोई भी बात आप एक्सेप्ट नहीं करें, आप उसको बिलीव नहीं करें और आप उसको माने नहीं.
अब आपको ये बहुत अजीब लगेगा कि if I don't want you to accept or believe or agree with whatever I have to say, तो फिर हम आज ये सेशन क्यों कर रहे हैं? हम लोग ये सेशन इसके लिए कर रहे हैं कि बहुत टाइम से हम लोगों का एक जीने का तरीका हो गया है, और वो क्या है कि कोई भी अगर एक्सपर्ट बन के आता है या कोई भी अथॉरिटी फिगर हमारे सामने आता है और वो हमको कुछ कहता है, तो हम उसको द वे इट इज सेड मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम लोग उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। आज हम ट्राई करेंगे ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड को ना लेकर ये देखने का कि क्या हमारे पास ये मेथड छोड़ के कोई और मेथड है क्या। तो वो मेथड को इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। तो फिर से बोल रही हूँ कि जो भी बात आज आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगी, मेरी प्रार्थना है आप सबके साथ कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिए, आप अग्री मत हो जाइए, और आपको कोई भी चीज को बिलीव नहीं करना है क्योंकि मैं उसको बोल रही हूँ। ऐसा क्यों? 2 वजह से। नंबर 1, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। जो भी बात हम करने वाले हैं पेरेंटिंग, मेंटरिंग और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की, वो सारी बातों को मैं आपके सामने एक्सपर्ट के रूप में आकर नहीं रख रही हूँ। मैं भी आप में से ही एक हूँ। मैं, जैसा कि सर ने आपको इंट्रोड्यूस करते समय बताया, कि मैं मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। 28 इयर्स हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए। तो मेंटरिंग के बारे में मैंने जो भी कुछ सीखा है वो मेरे जर्नी में सीखा है। मेरा बेटा है 24 साल का, तो पेरेंटिंग के बारे में मैंने जो भी सीखा है, मैंने अपने बेटे को बड़ा करते करते और उसके साथ बड़े होते होते सीखा है। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप में से ही हूँ। हो सकता है जो जर्नी पे हम लोग जाने वाले हैं, वो जर्नी में कोई 2 कदम आगे चल रहा हो या कोई 2 कदम बाद में जर्नी शुरू किया हो, लेकिन उससे कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाता। हम लोग सब को एक्सप्लोरर्स हैं, एंड हमने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया किसी एक्सपर्ट की बातों को मानकर, उनकी राय को सुनकर और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करके। अब हम वो नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? आज आपके सामने जो भी बातें रखी जाएंगी, आप उनको एक प्रपोजल के रूप में ग्रहण करें। प्रपोजल का क्या फायदा है? प्रपोजल का ये फायदा है कि प्रपोजल एक सजेशन होता है। सजेशन हमेशा एक चॉइस के साथ आता है। तो क्या चॉइस होता है? चॉइस ये है कि जो भी प्रपोजल आपके सामने रखा जाएगा, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, आप उसको जांचिए, उसको परखिए, आप उसके बारे में सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, और इतना होने के बाद अगर आपको वो प्रपोजल ठीक ठाक लगे तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आपको वो ठीक नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में मेरा जर्नी लास्ट ईयर शुरू हुआ, एंड मुझे जो एक बहुत अच्छी चीज लगी वो थी ये प्रपोजल मेथड। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रपोजल मेथड के अंदर ये जो चॉइस छुपा है, वो चॉइस के साथ साथ क्या हो जाता है, उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी? आज का जो डिस्कशन है
उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, आपका है. That means whatever we are going to discuss today, I'm not asking you to accept or agree or believe anything. All I'm saying is keep an open mind. Take it in the form of a proposal. अब ये proposal का क्या करना है? तो proposal को दो तरह से हमने explore करना. First, we are going to verify it on the basis of our natural acceptance. अब natural acceptance क्या होता है? तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे नेचुरल एक्सेप्टेंस को लेकर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन फॉर बिगिनिंग नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है आपके अंदर की आवाज़. दैट मीन्स जो आपका इनर वॉइस कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने में आपकी मदद करता है, वो होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस. तो जो भी आपके सामने हम बोल रहे हैं, आपको उसको दो लेवल पे एक्सप्लोर करना है. वन, एट द लेवल ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस. सेकेंड, एट द लेवल ऑफ एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन. दैट मीन्स you have to live the proposal, you have to examine the proposal from the perspective of living it as part of your day-to-day routine life. और जब हम लोग प्रपोजल को ये दोनों पैरामीटर्स की मदद से एक्सप्लोर करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट बन के आता है वो क्या होता है? वो होता है राइट अंडरस्टैंडिंग. दैट मीन्स सही समझ. अब क्या हो रहा है ना, हम लोग अपने आप को समझदार मानते हैं और हमको ऐसा लगता है कि स्कूल और कॉलेज में अगर हमने अपने बच्चों को भेजा तो हमारे बच्चे समझदार बन के बाहर आएंगे. राइट? Now what I'm going to tell you is there is a difference between understanding and right understanding. समझ और सही समझ, इसके बीच में फर्क होता है. और ये फर्क को समझना किसी स्कूल और कॉलेज के लेक्चर के माध्यम से नहीं होता है. ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है, ये हमको खुद करना पड़ता है. तो इसके बारे में हम लोग जरा सा सोचेंगे एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नेचुरल एक्सेप्टेंस और राइट अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों को हम और अच्छा से समझ पाएंगे. अब मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ और आपको चूज करना है. ऐसा सोच लीजिए कि हम लोग ये हाइब्रिड मेथड में नहीं मिल रहे हैं, ये वेबिनार नहीं है. मैं एक्चुअली आपके साथ हल्दिया में, जो आपका बहुत सुंदर ऑडिटोरियम है, वहां पे स्टेज के ऊपर आपसे बात कर रही हूँ. एंड एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हम लोग चाय सर्व कर रहे हैं. ठीक है? तो अब चाय आपके पास कोई ट्रे में लेके आता है और आप वो कप उठा लेते हैं. ओके? अब स्टेज से मैं आपको बोल रही हूँ कि चाय बहुत गर्म है, अगर आप गर्म चाय पिएंगे तो आपका मुंह जल जाएगा. तो आप उसको 3 बार फूंक मारिए, उसको 3 सेकंड के लिए ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप 1 सिप पीजिए. ओके? ये प्रपोजल नंबर ए है. प्रपोजल नंबर बी, मैं स्टेज पे खड़े होके अनाउंस कर रही हूँ कि चाय आ चुकी है. आप में से बहुत लोगों को गरम गरम चाय पीनी अच्छी लगती है और बहुत सारे लोगों को मीडियम गरम चाय पीनी अच्छी लगती है. तो चाय आपके पास है, आपको जैसे अच्छा लगे आप चाय का लुत्फ उठाइए और उसके साथ साथ हम लोग कुछ प्रपोजल्स को भी एक्सप्लोर करें. अब ये है बी ऑप्शन. आप मुझे बताइए आपको कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा. ऑप्शन ए, जब मैंने आपको बोला कि आप उसको 3 बार फूंक मारिए, फिर आप 3 सेकंड के लिए रुकिए, उसके बाद आप 1 सिप लीजिए,
फिर आप 3 सेकंड रुकिए, फिर आप 1 सिप लीजिए। ये डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, आपके पास गरम गरम चाय है, जैसा आप ठीक समझो आप करो। इन दोनों में से आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगेगा? सर, कैन आई हैव सम आंसर्स फ्रॉम द ऑडियंस? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी? Only one response we got, that is B. Yeah, it's coming B. Okay. And from the people in the auditorium, how many of you like option B? Can you raise your hands? Some are with B. Okay. अब जरा हम लोग सोच के देखते हैं कि why is option B a better option over option A? What happens in option A? Option A में एक रेडीमेड सॉल्यूशन आपको दे दिया गया, आपको बताया गया ऐसा 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 कीजिए। ऑप्शन बी में आपके पास चॉइस है। अगर आप अपना मुंह जलाना चाहते हैं तो आप गरम गरम चाय पी लीजिए, आपको दिख रहा है कि उसमें से बहुत धुआं निकल रहा है। अगर आपको थोड़ा गरम चाय पसंद है तो 2 मिनट रुक जाइए। अगर आपको और कम टेम्परेचर का चाय पसंद है, 5 मिनट और रुक जाइए। आपके पास ऑप्शन है, राइट? एंड जब हम दोनों परिस्थितियों को तालमेल करके तोल मोल करके देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ऑप्शन बी हम लोगों को ज्यादा चॉइस देता है। किस चीज का चॉइस देता है? हमको सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ वेरिफिकेशन का चॉइस देता है। दैट मीन्स अगर आप गरम चाय पी के मुंह जलाना चाहते हैं तो ठीक है, आप वो कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। देखिए, एंड में कंक्लूजन सबका वही होगा। जो गरम गरम चाय पी के मुंह जलाएंगे उनका भी यही कंक्लूजन होगा, थोड़ी देर के बाद चाय पीते तो अच्छा था। और जो लोग थोड़ी देर के बाद चाय पिएंगे उनका भी कंक्लूजन वही होगा कि हाँ, ये टेम्परेचर पे चाय पीना ठीक है, अच्छा हुआ 2 मिनट पहले नहीं पी, मुंह जल जाता। लेकिन फर्क क्या है? ऑप्शन ए में आपको कोई चांस नहीं दिया गया कि आप अपने आप सोचें, एक्सप्लोर करें और कंक्लूजन पे पहुंचें, जबकि ऑप्शन बी में आपको गलती करने का चांस दिया जा रहा है कि आप ठीक है, आप अपने हिसाब से कीजिए, हो सकता है आपका मुंह जल जाए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आपके पास गर्म चाय आएगी तो ये एक्सपीरियंस से आपको पता रहेगा कि कौन से टेम्परेचर पे चाय पीना ठीक होता है। तो जो UHV का मेथड है ना, वो ऑप्शन बी वाला मेथड है। दैट मीन्स it is a process of self exploration and self verification. You explore, you verify, and then you decide. And what we have understood is that this is a better method compared to handing down a list of do's and don'ts to anybody. Now that could be our family members, that could be our students in the class, or that could be employees working for us in an office. So now going ahead, what I told you was that verifying a proposal on the basis of natural acceptance and experiential validation leads to right understanding. So now let us try to see what is the meaning of right understanding. Right understanding is that understanding which is universal. That means whether I am in Mumbai or you are in Haldia or somebody else is sitting in Tokyo or Rangoon or Washington, everybody reaches the same conclusion. So it is universal. If you drink very, very hot tea, you are going to scald your mouth. There will be boils on your tongue. Now this is universal. उसमें कोई रेस या सेक्ट या क्रीड या नेशनैलिटी की बात नहीं आती। Right understanding is rational. It is not based on blind beliefs. It is based on logical reasoning. हमारे माउथ का टेम्परेचर क्या होता है, चाय का टेम्परेचर क्या है, वो डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि अगर आप
गरम गरम चाय मुंह में ले लेंगे तो आपका मुंह जल जाएगा, इसमें कोई ब्लाइंड बिलीफ की बात नहीं। इट इज वेरीफाइबल। आपको नहीं विश्वास हो रहा, ठीक है, आप गरम गरम चाय पी के देख लीजिए, आपका मुंह जलने ही वाला है। और जब वो जलेगा तो क्या हो जाएगा, आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे। एंड सेकेंडली, right understanding is that understanding which leads to harmony at 4 levels, at the level of individual, family, society and nature. अगर आप गरम गरम चाय पिएंगे तो क्या होगा, आपका मुंह जलेगा, मुंह जलने के साथ आप बैठ नहीं पाएंगे, आप मुंह खोलेंगे चाय गिरेगी, हो सकता है किसी के कपड़ों के ऊपर गिर जाए जो आपके बाजू में बैठे हैं, वो चिल्लाने लगेंगे, अरे क्या कर दिया, दिखता नहीं है, पता नहीं है, मेरा अच्छा नया धुला हुआ कपड़ा तुमने गंदा कर दिया। आप उनको बोलेंगे सॉरी, लेकिन इतने में क्या होगा, आपने देखा एक डिसहार्मनी का वातावरण बन गया। सो what is the difference between understanding and right understanding? समझ और सही समझ, इसमें क्या फर्क है? समझ आपके लेवल का समझ हो सकता है, लेकिन अगर वो ये 4 क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग बिकम्स राइट अंडरस्टैंडिंग only and only if fulfills these criteria. It has to be universal, it has to be rational, it has to be verifiable, and finally it has to lead to harmony at 4 levels: individual, family, society and nature. If this is not happening, then it is understanding, it is not necessarily right understanding. So this was the meaning of right understanding. Now let us come to natural acceptance. Sir, I will need your help. I'm going to ask certain questions and very quickly you have to give an answer. Okay? So what is acceptable to you? Trust or mistrust? Everybody who says trust, raise your hands immediately. आपको trust चाहिए कि mistrust चाहिए? Sir, are hands raised? I'm sure a lot of hands are raised. Secondly, what do you want? Respect or disrespect? If you want respect, raise your hand. You want affection or you want jealousy? If you want affection, raise your hand. Gratitude or ingratitude? Raise your hands if you are for gratitude. Love or hatred? If you are for love, raise your hand. And finally, raise your hands if you stand for competition or collaboration. Now, this slide helps us to understand what is natural acceptance. So what is natural acceptance? नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है सहज स्वीकृति, जो मुझे नेचुरली स्वीकार है, सहज रूप से स्वीकार है। एंड सहज स्वीकृति कहां से आती है? इट इज माय इनर वॉइस विच हेल्प्स मी टू टेक अ डिसीजन। तो आपको ट्रस्ट चाहिए या मिसट्रस्ट चाहिए? आपका इनर वॉइस आपको क्या बोल रहा है? अरे मिसट्रस्ट तो हम चूज नहीं कर सकते ना, तो हम क्या चूज करेंगे? हम चूज करेंगे ट्रस्ट। तो ये होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस। सो आई होप बाय नाउ वी हैव started understanding 2 concepts which are key to UHV. One is right understanding, the other is natural acceptance. So very quickly, right understanding is that understanding which fulfills the criteria. Which criteria? It is universal, it is rational, it is verifiable, and it fulfills harmony at 4 levels. What is natural acceptance? Natural acceptance is answering a question, taking a decision guided by our inner voice. Okay? So now going ahead, I want to take you back by a few years into your childhood. Okay? Now, over a period of time, अगर हम लोग आज क्या डेट है? 24 अगस्त। तो अभी अभी हमने 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, एंड ये हम लोगों का 75th इंडिपेंडेंस डे था, राइट? दैट मीन्स over a period of 75 years, if we look back, what do you think? Has the world made a lot of progress? You know, when we see from the
perspective of the world, then yes, we have made a lot of progress. Remember the period of World War I and World War II, when the entire world was in a very problematic situation. So we managed to come out of it. The Great Depression of 1929. After that, a series of so many other world problems. And what we find is that yes, collectively, we have made a lot of progress. We have managed to solve a lot of problems. For example, today, there is lot of awareness about our environmental responsibilities. We are doing a lot when it comes to solving the world problems together. In fact, as a international community, there is so much that we have done about making sure that people live happily and they live better lives. So as the world community, have we made progress? Yes, sure, we have made progress. Let us look at the level of nation. At the level of country, have we made progress? Last 75 years, अगर हम लोग देखने जाएं पीछे मुड़ के, तो एज अ कंट्री क्या हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया है? तो लगता है कि हाँ किया है. फॉर एग्जाम्पल, कितने जगह रेलवे ट्रेन्स रेलवे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड थे 1947 में, 75 इयर्स पहले, और आज हम लोगों का रेल नेटवर्क कितना वास्ट है? इज देयर अ डिफरेंस? श्योर. हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्या था? कितने बड़े हॉस्पिटल्स हमारे कंट्री में थे और आज कितने हैं? हैव वी मेड अ प्रोग्रेस? फॉर श्योर. How many schools, colleges and universities were there and how many are there now? What was the gross enrollment ratio and the literacy rate and what it is now? What was the longevity rate? What is it now? So when we look at any of these parameters, for sure, as a country, we have made a lot of progress. In fact, all of us are aware of our, forget at the level of the country, India has put itself out in the space, isn't it? So the type of progress that ISRO has done, whether it comes to Mission Moon or it comes to Mangalyaan, all of us are aware of. And that definitely speaks about a lot of progress. In recent times, how many countries in the world can say that they developed indigenous vaccines for COVID-19? And we are one of them. Right. If you look at the rate at which we are successful in vaccinating vast numbers of our population, for sure it is a progress. So as a nation, क्या हमने progress किया? हमने बहुत progress किया. As a society, क्या हम लोग कुछ progress कर पाए over the past few years? तो as a society हम लोग बहुत सारे problems को overcome कर पाए. एज अ सोसाइटी हम लोग बहुत सारे निर्णय ले पाए. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने सोचा कि हमको अपने बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए. हम लोगों ने सोचा कि हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए. सो एज अ सोसाइटी हैव वी मेड प्रोग्रेस? फॉर श्योर. अब हम आते हैं आपकी फैमिली पर. आप जरा पीछे मुड़ के देखिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जेनरेशन से आपके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स से आप तक आने में आपको क्या लगता है? आपकी फैमिली ने प्रोग्रेस किया या नहीं किया? हो सकता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स विलेज में किसी छोटे से घर में रहते हैं. पेरेंट्स ने वो छोटे से घर को बड़ा किया. हो सकता है पेरेंट्स विलेज छोड़कर अर्बन एरियाज में आए, टाउन्स एंड सिटीज में आए. हो सकता है पेरेंट्स के टाइम तक ग्रैंड पेरेंट्स उनको और अच्छा पढ़ाने में कामयाब हुए. तो आपके पेरेंट्स एजुकेटेड पेरेंट्स थे, जिन्होंने अच्छे जॉब्स किए, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, और हम आप तक आए. अभी आपके लेवल पे जब हम आते हैं, तो मे बी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैलगाड़ी थी,
आपके पेरेंट्स के पास साइकिल था, लेकिन आपके पास कार है, राइट? आपके पेरेंट्स के टाइम पर एयर ट्रैवल करना एक बहुत बड़ी बात होती थी। खाली इंडस्ट्रियलिस्ट और एक बहुत ही रिच स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी की पहुंच थी वहां तक, लेकिन आजकल एयर ट्रैवल एक आम बात है, राइट? सो एज अ फैमिली क्या हमने प्रोग्रेस किया? तो ये दिखाई देता है कि हाँ, डेफिनेटली हम लोगों ने प्रोग्रेस किया, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा बड़े घर हैं, हमारे घरों में ज़्यादा लग्जरी के सामान हैं, सुख सुविधा के सामान हमारे पास ज़्यादा हैं, हमारे पास कल खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं ऐसा प्रश्न नहीं आता है, जो कि शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आया हो। हम लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स ने 1947 में पार्टीशन के टाइम पर बहुत कठिन समय झेला हो, या फिर जब 1971 का बांग्लादेश का वॉर हुआ था तब बहुत कठिन समय हम लोगों ने देखा हो, कि हमको सब कुछ छोड़ के रेफ्यूजी बनकर अपना सब छोड़ के आना पड़ा हो। आज के टाइम पे अगर हम अफगानिस्तान का सिचुएशन देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। नाउ आई वांट टू आस्क यू कि आपके पास आपके ग्रैंड पेरेंट्स के हिसाब से ज़्यादा बड़े घर हैं, आपके घरों में सुख और सुविधा का सामान डेफिनेटली ज़्यादा है। नॉट ओनली दैट, आपने ज़्यादा पढ़ाई की है, आपके घर में खाने का सामान ज़्यादा है। अगर आप अपने घर में अलमारियां खोल के देखेंगे तो आपके अलमारियों में बहुत ज़्यादा और बहुत कीमती महंगे कपड़े हैं कंपेयर टू व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स कुड हैव एवर थॉट और एस्पायर्ड फॉर, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है, आप ज़्यादा खुश हैं या आपको लगता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स शायद ज़्यादा खुश थे? 2 मिनट इसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करके मुझे बताइए। ग्रैंड पेरेंट्स तक अगर हम नहीं जाएं, अगर हम अपनी ही बात करें, हम लोग सबके पास स्मार्ट टीवीज हैं, है ना? और वो स्मार्ट टीवीज में आप जिस तरह के चाहे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। दैट मीन्स अगर the best of the web series ever made, whether it was made in US or it was made in UK or it was made in Korea or it is a Japanese film, अगर आपको वो देखने का मन है तो वो आपके पास अवेलेबल है, राइट? अब आप मुझे 1 मिनट जरा सोच के बताइए कि ये स्मार्ट टीवी जो 24 घंटा आपको एंटरटेन कर सकता है, वो आपको ज़्यादा खुशी देता है, या फिर आपके बचपन का वो ब्लैक एंड वाइट का टीवी जब हम लोग खाली संडे को एक फिल्म पूरे हफ्ते में देख पाते थे? टेल मी, व्हेन हैव यू बीन मोर हैप्पी, नाउ और एट दैट टाइम? Please be mindful, you have much more resources now. You had less of resources at that time. But when you think about happy times, do you think about the times of your grandparents? Again, continuing with this reflection, हमारे घर बड़े हो गए, आपने देखा, लेकिन हमारे दिल छोटे हो गए। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम क्या इतने ज़्यादा डिवोर्सेस और ब्रेकअप्स होते थे जो कि आज होते हैं? What is your answer? Looking back, can you see that over the last few years, just as we made a lot of material progress,
We made a lot of progress when it comes to increasing physical facility at our homes. Along with that, we also made a lot of progress when it comes to so many problems. The number of people suffering from depression, hypertension, and stress, is it more now or was it more in the past? Number of people having court cases because one brother is fighting with the other brother over what? Over a small house. Both of them have got big houses. वो जो एक्स्ट्रा घर है ना, वो जीत जाने से आप कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको वो चाहिए, और उसके लिए आपने क्या किया? आपने अपने भाई के ऊपर केस कर। द बिटर डिवोर्स बैटल्स फॉट in the court today. The number of young people who are suffering from depression and the number of people who are suicidal, the number of people who actually end up committing suicides, has that also increased. हमारे पास बहुत बड़े घर हैं, लेकिन ये बड़े घरों में खुशी है ऐसा तो जरूरी हमको नहीं लग रहा है। क्या लगता है यार? Have we also ensured happiness along with a growth in our material resources? Are you able to see that yes, there is a strange juxtaposition? We have bigger houses, but we have fewer people to talk to. We have more resources today, but we don't have enough people with whom we can share the joy. And thanks to our smartphones, we are more connected with some strange people whom we meet over Twitter or Instagram, and we actually have no deep relation with our own family members who are sitting next to us. That means हमारे अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे अपने स्पाउसेस के साथ, हमारे अपने ब्रदर्स सिस्टर्स और बच्चों के साथ हमारा रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ बात नहीं करते हैं, लेकिन हम वो सब स्ट्रेंजर्स के साथ चैट करते रहते हैं जिनको हम कभी मिले नहीं और जिनको शायद हम कभी मिलेंगे भी नहीं, और हमको उनके बारे में कोई अता पता भी नहीं है। Is this happening? Sir, can I get some response from the audience? Are they able to see some of these things happening? Yes is the response. Yes is the response. Thank you, sir. Why do we do whatever it is that we end up doing? For example, all the people sitting in the audience, I'm especially talking about parents, and I'm especially talking about the industry people who are our employers, and we are very thankful to you. Year after year, you keep on coming back to our college to pick up talent. This is a question for you. आप लोग आज जो ऑडियंस में बैठे हैं, आप पीछे मुड़ के देखिए, आपने कितने सालों तक की पढ़ाई की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए. Now many of the faculty members, and I'm sure parents and the other corporate guests would have spent something like 20 years just to complete your education. है ना? Maybe more also. 12 years तो हमारे क्लास 1 से क्लास 12 तक ही लग जाते हैं. उसके पहले हम लोगों ने 3 साल डाले होंगे, लोअर केजी, अपर केजी एंड सो ऑन. So 15 हो गया. 3 to 4 to 5 years to 6 years we put in to get at least up to the level of masters, right? So 15 and 6 makes it 21. So at least 18 to 20 years of education all of us put in. उसके बाद फिर हम लोग जॉब करना शुरू कर देते हैं, एंड जॉब का जो हमारा स्ट्रेस होता है वो हम सबको मालूम है, राइट?
तो इतने साल हमने पढ़ाई किया, एंड पढ़ाई मतलब एक डिफिकल्ट लेवल का पढ़ाई जिसमें इतना सैक्रिफाइस था, बिकॉज यू वांटेड टू गेट इनटू दैट गुड कॉलेज। तो जैसे आपके फ्रेंड्स एक इजी लाइफ जी रहे थे, आपने वो नहीं जिया, बिकॉज यू वांटेड योर एजुकेशन टू बी गुड। आफ्टर दैट यू स्टार्टेड वर्किंग, and when you started working again, there was something to be done, and that was to be done very seriously. You could have taken life easy, but you did not do that, right? After that you got married, and then you have children. Why are we continuously in the middle of this struggle? Ultimately, what is it that we want? ये सब हम क्यों करते हैं? एंड नाउ एज पेरेंट्स एंड मेंटर्स, जब हम अपने बच्चों के साथ बात कर रहे होते हैं, एंड कोई मेरा स्टूडेंट या बच्चा आकर मुझे बोलता है कि मैम, आई टीच इन एन MBA कॉलेज एंड आई कैन अश्योर यू आई हैव सीन स्ट्रगल फर्स्ट हैंड, एंड दिस स्ट्रगल नेवर एंड्स, एंड यू नो इफ दिस kid comes and tells me it's very difficult and I don't know what to do, by default what is the answer do we that we give them? We tell them, बेटा हाँ मुश्किल है लेकिन तुम कर लो, फिर आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी, isn't it? जब हमारे बच्चे 10th में होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? बेटा ये बोर्ड एग्जाम है, ये मुश्किल है लेकिन कर लो, ये कर लोगे ना तो आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब बोर्ड 10th का पास करके बच्चे की लाइफ अच्छी हुई नहीं हुई ना, क्योंकि अब उसको हम क्या बोलते हैं? अरे बेटा 10th तक तो ठीक था लेकिन अब 12th है, दिस इज वेरी क्रिटिकल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू, दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ। वो बेचारा बच्चा फिर से 12th में अच्छा करने का कोशिश में लग जाता है। देन व्हाट डू वी से? अरे दैट वाज नॉट इनफ, इंजीनियरिंग कोई मजाक नहीं है, यहाँ पे तुमको बहुत हार्ड वर्क लगेगा, सो यू बेटर वर्क हार्ड। वाई शुड आई वर्क हार्ड? क्योंकि ये करोगे ना तो आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब आगे मतलब और कितना आगे? सो दिस चाइल्ड फिनिशेस हिज इंजीनियरिंग, देन व्हाट डू वी से? इंजीनियरिंग हैज बिकम लाइक 10th, मास्टर्स तो तुमको करना ही पड़ेगा। वो बेचारा बच्चा मास्टर्स भी कर लेता है। देन व्हाट डू वी से? अरे देखो सब बच्चे प्लेस हो गए, तुम्हारा क्या हाल है? अगर कैंपस में रहते ही तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, यू आर फिनिश्ड, कोई तुमको पूछने नहीं वाला है। गेट अ गुड जॉब। The kid ends up getting a good job, and then what do we say? देखो बाकी सब बच्चों की शादी हो गई, तुम क्या कर रहे हो? You know what I'm trying to tell you is that we keep on moving the goalpost, and एक मिनट के लिए ये जो एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, उसमें एक मिनट के लिए रुक के अगर हम अपने आप को पूछें, why are we doing all this? ये सब क्यों करना है? ये सब किसके लिए चाहिए? What is the answer that we get? क्यों चाहिए ये सब? You know, by default the answer is to become happy, isn't it? Right? You ask any student who is in college, what is it that you want to do after you finish your education? तो सभी बोलते हैं कि हमको एक बहुत अच्छा जॉब चाहिए। क्यों चाहिए बहुत अच्छा जॉब? और बहुत अच्छे जॉब का डेफिनेशन क्या है? When does a job become a desirable job or a good job? The answer again would be, it has to be in a good brand. The package has to be very good. अच्छा पैकेज मिलेगा तो क्या करोगे? कैन यू सी, वो बच्चा वहीं से लाइफ शुरू कर रहा है जहां से हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ था। दैट मीन्स अब वो बच्चे को घर चाहिए, फिर 4-5 साल के बाद उसको बड़ा घर चाहिए, फिर उसको और बड़ा घर चाहिए, पहले उसको कार चाहिए, उसके बाद उसको SUV चाहिए, फिर वो बोलता है कि नहीं SUV भी इनफ नहीं है, मेरे को एक लग्जरी सेगमेंट की कार चाहिए, उसके बाद उसको यॉट चाहिए, उसको उसका अपना हेलीकॉप्टर चाहिए। यू नो, इट डज नॉट एंड। अब ये सारे झमेले में खुशी कहाँ पे चली गई? So what is basic human aspiration? All of us aspire to be happy.
When do we want to be happy? Do you want to be happy on Monday or do you want to be happy on Tuesday? Now, if I ask you this question, आप बोलेंगे ये कैसा अटपटा सा question है ना? What do you mean? When do you want to be happy? I want to be always happy, isn't it? So, what do we look for? We look for happiness in continuation. I want to be always happy. मुझे निरंतरता में सुख चाहिए. एंड आपको छोटे घर से बड़े घर में क्यों जाना है? आपको छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए? बड़ी गाड़ी से और ज्यादा बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए? बिकॉज समवेयर इन आवर सोसाइटी हमने ये चीजों को मार्कर्स बना के रखा है. किस चीज का मार्कर्स? मार्कर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी. इट शोज ग्रोथ. आई एम पुटिंग अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ यू. आप खुद एक्सप्लोर करके देखिए. आपको क्या लगता है? डू यू थिंक these are good markers of prosperity? Because from small to big to big to big to big, it never ends and we never ever feel prosperous. So perhaps we need to understand the meaning of prosperity. What is prosperity? Let me tell you a small story. So this happened many years ago. My college had adopted a small village and we were going to do some village immersion work with students. So I was in this tribal village in Maharashtra and जो वो ग्राम पंचायत था उनके साथ हम लोग कुछ सर्वे का काम कर रहे थे. तो हम लोग वो पूरे विलेज में जा रहे थे एंड डेटा कलेक्शन का काम हमारा चल रहा था. तो ऐसा होते होते हम लोग जो उनका ट्राइबल स्कूल था ना, हम लोग वो स्कूल के पास पहुंचे एंड उस समय 1 PM का टाइम था. तो उनका लंच टाइम था. It was a very simple school with very rudimentary infrastructure. So there were 2 or 3 classes which were absolutely bare. जमीन पे चटाई बिछाई हुई थी और एक बोर्ड था. That's all. कोई और ऐसा फैसिलिटी नहीं था. तो मिड डे मील का स्कीम वो स्कूल में चल रहा था. It was 1 PM. It was their lunch time. तो वो सभी बच्चे चटाई के ऊपर बैठे हुए थे. उन सबके सामने एक छोटा सा टिन का प्लेट था और जो भी उनका मील प्रिपेयर हुआ था वो क्या मील था? इट वाज खिचड़ी, बॉइल्ड दाल एंड राइस. तो जो उनका कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर था उसने एक बड़े बर्तन में खिचड़ी बनाई थी एंड वो लोग वो बच्चों को सर्व कर रहे थे. तो सब बच्चे जमीन पे चटाई के ऊपर बैठे थे. दे हैड अ टिन प्लेट एंड अ स्पून and this canteen guy was coming with a चम्मच serving spoon और वो सबको खिचड़ी उनके प्लेट में डाल रहा था. So हम लोग उसी समय वहाँ पे पहुँचे and I told my students to wait क्योंकि I thought वो बच्चों को खाना खत्म कर लेने दे. After that we will talk to the teachers. तो हम लोग पीछे ही खड़े हो गए. लेकिन आपको पता है वो बच्चों ने हमको देख लिया जबकि हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे. एंड इन वन वॉइस इन मराठी all those students shouted and they said जेवायला या. जेवायला या का मतलब होता है खाना खाने आइए. That was the time when for the first time I understood the meaning of prosperity. प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग होता है ये आपके अंदर में फीलिंग आना कि मेरे पास मेरी जरूरत से ज्यादा सुविधा है. अब सोच के देखिए वो छोटे छोटे बच्चे उनका इतना सा ही तो खाना था ना, बट स्टिल उनके अंदर ये फीलिंग थी कि मेरे पास इनफ है कि मैं गेस्ट के साथ शेयर कर सकूं.
तो जब आपके अंदर ये फीलिंग आती है तब आप प्रॉस्परस फील करते हैं, राइट? अब आप सोचिए, प्रॉस्परस फील करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, फिर उससे बड़ी गाड़ी और फिर हम हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए, है ना? वो प्रॉस्पेरिटी का फीलिंग तो आपको छोटी गाड़ी में भी आ सकता है, राइट? जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आया और आपने उनके आते के सार उनको पूछा, आप चाय पियेंगे? आप किसी और को चाय का ऑफर देने के काबिल अपने आप को कब समझते हैं? When you are very clear in your head that you have more than your current requirement. That means कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में शांति है क्या, कि मेरे किचन में मिल्क है, शुगर है, टी लीव्स हैं, वाटर है, मेरे पास गैस है, एंड इट इज मोर देन माई नीड. दैट मीन्स आई एम नॉट वरीड कि अगर मैंने आपको चाय दे दिया तो मेरे पास चाय नहीं बचेगी. So whenever I feel that I have more than my own need, that is the time for me to feel prosperous. If we explore prosperity from this perspective, suddenly we start realizing how rich we are. In fact, I want to give a small assignment to you today. Today और over the weekend, जब भी आपको टाइम हो, आप बैठ के जरा अपने आप को पूछिए, क्या आपको पता है कि आपके पास कितने कपड़े हैं? How many clothes do you have in your wardrobe? क्या आपको कोई अंदाजा है उसके बारे में? शायद आपको अंदाजा नहीं होगा. तो इसके लिए ये असाइनमेंट ओवर द वीकेंड आप कीजिए. आप अपना कबर्ड खोलिए और जो भी आपके कबर्ड में है ना, आप वो सब बाहर निकालिए एंड प्लीज टेक स्टॉक. हो सकता है आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलें जिनके बारे में आप भूल चुके होंगे कबर्ड में रख के. आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पास इतने शर्ट्स हैं, आपके पास इतनी साड़ियां हैं, आपके पास इतने शूज हैं. हो सकता है आपको याद ही नहीं हो. एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत कुछ ऐसा मिले जो आपके करंट रिक्वायरमेंट में नहीं आता है. यू डोंट नीड दैट शू एनी मोर. You don't need that shirt anymore. Now there are two options. One is that shirt keeps lying in your cupboard without ever being used. The other option is if you are feeling prosperous and you tell yourself कि मेरे काम में अभी ये नहीं आ रहा है, मेरी जरूरत के लिए जितना चाहिए I have, ये शर्ट किसी और के काम आ सकता है. And very happily you give it away to someone. If you find yourself capable of doing that, that means you are feeling prosperous. So this is the meaning of prosperity. As parents and as mentors, when our children or our wards come and seek guidance from us, this is something that we need to be mindful of. Do we help them to set their expectations right? ये जब बच्चे आके बोलते हैं ना कि खाली ब्रांडेड कंपनी होनी चाहिए, खाली बड़ा पैकेज होना चाहिए, तभी हम इंटरव्यू में जाएंगे, तभी हम जॉब को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये इनके दिमाग में आया कहाँ से? Somewhere, all of us are collectively responsible because this is what we told our children, our students, directly or indirectly. Maybe there were certain things that we forgot to tell them. अगर आपका जॉब बहुत बड़े कंपनी में है, बहुत अच्छा ब्रांड है, आपको बहुत बड़ा पैकेज भी मिल रहा है, लेकिन आपको दिन में
16 घंटे 17 घंटे जॉब में ही बिताने हैं, वो बड़ा पैकेज के साथ भी आप क्या कर लोगे? ये बड़ा पैकेज आपको किसके लिए चाहिए? आपके फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए अच्छे से, है ना? लेकिन अगर वो टाइम ही नहीं आपको दे रहा है जॉब, तो वो पैसा आपके कौन से काम आने वाला है? इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अपने स्टूडेंट्स या अपने बच्चों के सामने अगर रखें तो हो सकता है हम उनको और अच्छा डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं. There's something that we need to ask ourselves. अगर हम देखें और ऑनेस्टली अपने आप को पूछें कि हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है आज. You know, when it comes to material prosperity, we have for sure made a lot of progress. But are we as happy as they were? We are not very sure about the answer, correct? So the question that we need to ask ourselves is, why are our families unhappy? Are our families unhappy क्योंकि हमारे घर में एक ही एसी है, जबकि हमारे घर में 3 कमरे हैं, तो 3 एसी होने चाहिए. So is my family unhappy because I don't have that expensive carpet? Is my family unhappy because I don't have air conditioners in every room? Or is my family unhappy because I don't have fulfilling relationship with my family members? Can you answer this question, please? What will you choose? A, that is unhappiness is because of lack of physical facility, or B, unhappiness is because of lack of fulfillment. What is your answer? Sir, can you please help me? What are the people choosing, A or B? From the live audience, people who are choosing A can raise their hands. Mostly B. Mostly B. That means we are able to see that yes, we require physical facility. However, physical facility in itself cannot guarantee happiness in our families. In addition to physical facility, there is something else that we need. And what is that? That is relationship. Physical facility can give you fulfillment if you live at the level of animal consciousness. For example, if there is a cow or if there is a dog, you know, if they get enough food and if there is a place for them to lie down, that is enough for them. They don't care for other things. So physical facility is enough if we are living our lives with animal consciousness. However, we don't live our lives with animal consciousness, isn't it? We live our lives with human consciousness. So, at the level of human consciousness, what we realize is physical facility is necessary, but it is not enough. सुख और सुविधा का साधन होना जरूरी है खुशी के लिए, लेकिन वो इनफ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है. तो सुख और सुविधा के साधन के साथ साथ कुछ और भी चाहिए, और वो क्या चाहिए? वो चाहिए रिलेशनशिप. दैट मीन्स हमारा जो रिश्ता है हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, अगर वो ठीक ठाक नहीं है तो वो हमको अनहैप्पी ज्यादा करेगा कंपेयर्ड टू हमारे घर में बहुत कंफर्टेबल सोफा है, लेकिन
आपकी अपनी वाइफ के साथ बनती नहीं है, तो वो कंफर्टेबल सोफे के ऊपर बैठकर भी करना तो झगड़ा ही है ना, है ना। आपके घर में बहुत सुंदर डाइनिंग टेबल है, लेकिन वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाने का मजा नहीं आ पाता, क्योंकि आप और आपके बच्चों में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। In fact, it is very sad, but when I talk to my students, बहुत बार मैंने बच्चों से सुना है कि फैमिली के साथ आप कौन सा टाइम बिताते हैं। वो बोलते हैं मैम बहुत मुश्किल है, बस खाली रात को खाना खाने का टाइम हम लोग सब साथ में होते हैं। सो आई सेड उस टाइम पे आप क्या करते हैं? एंड जैसे कि मैम वो बस लगता है कि ना खाना स्वॉलो करो और यहाँ से भागो। दैट्स वेरी सैड, इजंट इट? In the entire day you are there with your family only for dinner time, so that dinner time has to be a happy time, isn't it? ऐसा क्यों होता है कि आप खाना निगलो और वहां से भागो? आपके घर में अच्छा खाना नहीं बनता? So they say नहीं मैम वो बात नहीं है, खाना अच्छा होता है, बट वो लगता है कि ना अभी अटैक हो जाएगा। कहाँ से अटैक हो जाएगा? पेरेंट्स का अटैक हो जाएगा। आई मीन, being a parent myself, I want to tell these children that look kids, your parents are not here to attack you, they are here to guide you, they are here to mentor you, but that is not what our children feel. And किस बात का अटैक हो जाएगा? They will always ask कि आपके मार्क्स कितने आए, हमारे कितने भी अच्छे मार्क्स हो, it is never enough for them. या फिर वो बोलेंगे कि प्लेसमेंट का क्या हाल है, कौन सी कंपनी आई, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तुम फाइनल राउंड तक क्यों नहीं गए। एंड जैसे कि ये बातें हमको करना अच्छी नहीं लगती है। सो ऑल वी वांट टू डू इज gobble our food and run away. Now that's very sad, isn't it? Because right now, a minute back when I asked, is physical facility enough? We understand that no, physical facility is not enough. In addition to physical facility, what we need is relationship. That means we recognize that relationships are important. तो ये recognize करने के बाद भी हम क्या करते हैं? क्या हम अपने रिश्तों में मिठास बनी रहे ऐसा कोई कदम उठाते हैं? आप ऑनेस्टली एकदम ईमानदारी के साथ अपने आप को पूछ के देखिए कि रिश्तों में मिठास बनी रहने के लिए आपने आज तक क्या किया। तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इनफैक्ट आप उसका उल्टा ही करते रहते हैं, है ना। दैट मीन्स जरूरत हो या नहीं हो, हम लोगों के आर्ग्यूमेंट्स, हम लोगों के झगड़े, हम लोगों के ऑपोजिशन जो है, हमारे एक विरोध की भावना, वो हमेशा बनी रहती है और वो हर लेवल के रिलेशनशिप पे बनी रहती है। तो हमारा हमारे नेबर्स के साथ झगड़ा है क्योंकि उन्होंने गाड़ी को पार्क करने के समय ज़्यादा जगह ले ली। हमारा हमारे स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा है क्योंकि मेरी क्लास में जब मैंने बोला था कि आप फ़ोन नहीं यूज़ करो, तब भी वो फ़ोन के ऊपर चैट कर रहे थे। मेरे बच्चों के साथ झगड़ा है क्योंकि मेरी नज़र में मैंने मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ किया पर वो कभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। मेरे वाइफ के साथ झगड़ा है, मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा है, मेरे इन-लॉज के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, हर एक के साथ हमारा प्रॉब्लम ही बना हुआ है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों होता है कि घर हो, नेबरहुड हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो, लोकल ट्रेन हो, सब जगह पे हमारा झगड़ा ही चलता रहता है, जबकि हम लोग मानते हैं फिजिकल फैसिलिटी इज नॉट इनफ, इन एडिशन टू फिजिकल फैसिलिटी relationship is also enough. So when we think a little deeply, what we understand is कि एक missing block है और वो missing block क्या है? Right understanding. So as long as we do not have right understanding, we will not be able to live our relationships properly, and we will not be able to understand that physical facility ultimately comes from nature,
एंड मेरा नेचर के प्रति भी एक दायित्व बनता है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करूं। दैट मीन्स अगर मुझे 10 साड़ी की जरूरत है तो मेरे पास 50 साड़ियाँ होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 50 साड़ियाँ अलमारी में बंद करने से मैंने क्या किया, मैंने नेचर को एक्सप्लॉइट किया। आप सोच के देखिए वो एक साड़ी का कार्बन फुटप्रिंट कितना होगा, है ना। आपको 4 पेयर ऑफ शूज इनफ है आपकी सारी जरूरत के लिए, तो फिर आपके शू रैक में वो 15 पेयर ऑफ शूज क्या कर रहे हैं। वो 15 पेयर ऑफ शूज को बनाने के लिए हमने नेचर को कितना एक्सप्लॉइट किया। तो जब तक मुझे ये सेंसिटिविटी नहीं बनेगी, दैट मीन्स आई विल नॉट बी एबल टू लिव हैप्पीली ईदर विद नेचर और विद फेलो ह्यूमन बींग्स। तो क्या होता है when we ask people what is your priority between right understanding, relationship and physical facility, everybody ends up saying physical facility, but when we explore a little further ये realize होता है कि physical facility का requirement तो बहुत limited है, वो उतना ही चाहिए, और उससे ज्यादा physical facility आपके सुख में कोई ऑगमेंट नहीं करता है, वो आपको और ज्यादा सुखी नहीं बनाता है, बल्कि वो नेचर को डिप्राइव करता है। देन पीपल से रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी कितना चाहिए वो जानने के लिए जो मिसिंग ब्लॉक है वो है राइट अंडरस्टैंडिंग। सो द प्रायोरिटी, if I have to give 1, 2, 3, the number 1 priority is development of right understanding in my own self, so that I am able to see that relationships are more important than physical facility, and I am not an animal living with animal consciousness who will become happy if I have only physical facility. I am a human being living with human consciousness. So, physical facility can satisfy only a small aspect of my need. My actual need is living in harmony with, at 4 levels, with myself, with my family, at the level of society, and at the level of nature and existence. When this happens, I can live with a feeling of mutual happiness, and I can live with a feeling of mutual prosperity. That means अगर मेरे को 12 डिनर प्लेट्स की ज़रूरत है लेकिन मेरे पास 20 डिनर प्लेट्स हैं, very happily 8 extra plates I am willing to give to others because I am feeling prosperous. And this is the role of parents and mentors. As parents and mentors, बच्चों को ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे लेके जाना, that number 1 priority is right understanding, because only when that happens it is possible for me to live in harmony at all the 4 levels and to understand that I am responsible for all my actions. This is the role of education, and as parents and mentors, ये जो संस्कार होता है लिविंग का, संस्कार क्या होता है? The background with which I take future actions. मैंने क्या सीखा है जिसकी वजह से मेरे जो भी करंट एक्शंस हैं मैं उनको अपनी लाइफ का पार्ट बना रहा हूँ, ये होता है संस्कार। और यहाँ पे पेरेंट्स एंड मेंटर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। You know, normally if we look at parenting and mentoring, तो हमको ऐसा लगता है कि एज अ पेरेंट एंड मेंटोर मेरा काम क्या है? मेरा काम है मेरे स्टूडेंट को या मेरे बच्चों को
लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। दैट मीन्स एक अच्छा सिटीजन वो बन पाए, उसके लिए क्या उनकी तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी करा के देना मेंटोर और पेरेंट का काम है। जब हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के वर्कशॉप होते हैं फैकल्टीज के लिए, यू नो राइट नाउ 60th workshop is going on right now, and we started this during the lockdown period last year. So All India Council of Technical Education has taken up this very big step of making universal human values a compulsory part of education, and for that we are training faculty members. तो जब मैं भी ट्रेनिंग के लिए गई तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये समझना है ताकि मैं अपने बच्चों को तैयार कर सकूं, अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर सकूं। अभी भी जो फैकल्टी मेंबर्स आते हैं ट्रेनिंग में, उनका एक क्वेश्चन होता है रिसोर्स पर्सन्स के लिए, और वो हमेशा पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है वो 17-18 साल का बच्चा जो पूरा टाइम यूट्यूब देखता है, इंस्टाग्राम पे रहता है, उसको समझ में आएगा कि वैल्यूज के साथ जीना है? उसको समझ में आएगा कि राइट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है? तो यू नो उस समय रिसोर्स पर्सन्स एक आंसर देते हैं जो कि बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। आपको ऐसा लगता है कि यू आर प्रिपेयरिंग समबडी एल्स फॉर लाइफ, बट द क्वेश्चन इज आर यू प्रिपेयर्ड? एंड the realization that we all reach is, it is actually not about preparing someone else, it is all about preparing yourself. So then how do I take responsibility for my student or my child? I take responsibility by setting an example in front of them. That means I have to live all that I stand for. All that I'm asking you to do, it becomes meaningless until and unless I give you a live example of doing the very same things. So that means developing right understanding in myself, living with natural acceptance, and prioritizing right understanding with number 1, relationship with number 2, and physical facility with number 3. When I am able to do that, I am able to show to my mentee or my student or my protege that it is possible to live your life in harmony if you prioritize right understanding over relationship and physical facility. So this becomes the role of a parent or a mentor. As a parent or a mentor, we are not here to give a ready-made list of do's and don'ts to our students or our children. We are here to work as co-explorers, because honestly speaking, मेरा कौन सा एक्सपर्टीज है जो मैं किसी और को बोलूं कि आप अपनी जिंदगी कैसे जियो? क्या मैंने ऐसा सीखा है? क्या मेरे पास है जो मैं उनको दे सकूं? तो जब ऐसा देखने जाते हैं तो लगता है कि ऑनेस्टली मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे एक को एक्सप्लोरर बनना है, मुझे कोई टीचर नहीं बनना है। एंड एज अ को एक्सप्लोरर, एज अ को नेविगेटर, जब हम अपनी जिंदगी जीते हैं तो हम उनकी जिंदगी का हिस्सा भी बन जाते हैं, वो भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, एंड एक साथ हाथ पकड़ के हम वो रास्ता चलने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पेरेंटिंग एंड मेंटरिंग. As parents and mentors, we begin with understanding the human being. ऐसा हमको लगता है कि ह्यूमन बीइंग को अंडरस्टैंड करने का क्या है, वो तो हम सबको पता ही है. Who are you? I am a human being. Now to help you understand that, let me give you a small hypothetical example. Let us imagine कि ये लॉकडाउन और ये सब खत्म हो गया है, and all of us are meeting in a physical situation. I am also in Haldia like all of you, okay? And I give you an invitation and I tell you कि आप मेरे घर पे खाना खाने के लिए आइए. Fine. Let us also imagine कि आपने मेरा invitation accept कर लिया.
आप मेरे घर खाना खाने के लिए आ रहे हैं। नाउ आई एम अ वेरी गुड होस्ट। मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा होमवर्क किया। मैंने देखा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा। मैंने अपने घर को बहुत अच्छे से तैयार किया, सजाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। आप आए मेरे घर पे, मैंने आपका बहुत अच्छे से स्वागत किया। हमने बैठ के खाना खाया, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमने गेम्स खेले, हमने गाने गाए, हमने कहानियाँ सुनाई। जब आप शाम को जाने लगे, मैंने आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी दिया। और मैंने ये गिफ्ट आपको क्यों दिया? क्योंकि आप पहली बार मेरे घर पे आए थे and I wanted to make sure that I give you a good experience. Now you are about to go. Okay? And as a good host, मैं आपको नीचे तक छोड़ने के लिए आई हूँ। आप अपनी कार में बैठ गए। जैसे ही आप कार चलाने लगे, आपने बोला कि मीनू मैम, आपके घर आके बहुत अच्छा लगा, आई हैड अ वेरी नाइस टाइम। ओके, आप मेरे घर सुबह 9 बजे आए थे, अब रात के 9 बज गए हैं। दैट मीन्स 12 आवर्स वी हैव स्पेंट टुगेदर। ओके, आप गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं, आप बस निकलने वाले हैं और आप मुझे बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच, आई हैड अ वेरी नाइस टाइम। और मैंने आपको बोला, जब भी अच्छा खाना खाने का मन हो मेरे घर पे आ जाना, क्योंकि आपके घर पे तो अच्छा खाना बनता नहीं है, आपको तो आइडिया नहीं है गेस्ट को कैसे खुश करना है। तो जब भी आपको लगे कि अच्छा टाइम स्पेंड करना है, मेरे पास आ जाना। नाउ टेल मी, क्या आप वापस मेरे घर पे आएंगे? कैन आई गेट सम येस और नो? सर, कैन यू हेल्प मी? I personally believe never. Why so, sir? Why will you? Yes, so as the others also. Why will you never come to my place again, sir? Yes, sir. Why will you never come to my place again? Actually, मैम पूरा दिन लास्ट का एक वर्ड में खत्म हो गया, जो आपके ऊपर मेरे 12 hours we spent together, isn't it, sir? राइट राइट 9 a.m. to 9 p.m. राइट To speak that one hurting sentence. How much time I would have taken? A few seconds, isn't it? Right? राइट But that one sentence has spoiled everything for you. Am I एग्जैक्टली right? यस मैम And I am sure the audience also feels similarly. यस सेम Okay. Now, why this is so? You know, when we look at human being, who is a human being? Human being is a coexistence of body and self. Body refers to the material, tangible, physio-biological reality. And what is self? Self is consciousness. As parents and mentors, we make a mistake often. And what is that mistake? We forget the self part of the human being. जब आप मेरे घर पे आए, मैंने आपको अच्छा खाना दिया, मैंने एसी चलाया, मैंने पंखा चलाया, मैंने आपको कुशन दिया बैठने के लिए. What was I doing? I was giving you physical facility. वो फिजिकल फैसिलिटी ने क्या किया? वो जो फिजिकल फैसिलिटी है ना, वो आपके बॉडी के नीड को पूरा कर रहा है. आपको प्यास लगी है, मैंने आपको पानी दिया. आपको खाना खाने का मन था, मैंने आपके लिए हंड्रेड्स ऑफ टेस्टी डिशेस बना के रखे थे. तो वो वाटर, वो जूस, वो एयर कंडीशनर, वो सॉफ्ट कुशन, वो सबसे क्या हुआ? वो सबसे मैंने आपके बॉडी को सुखी करने का कोशिश किया. लेकिन जैसे ही मैंने आपको बोला
कि आपको तो गेस्ट को संभालना आता नहीं, आपके घर में तो अच्छा खाना बनता नहीं. What happened? You got hurt, isn't it? तो वो कहाँ पे हर्ट था? वो बॉडी का हर्ट नहीं था. वो किसका हर्ट था? वो आपकी सेल्फ का हर्ट था. एंड एज पेरेंट्स, एज मेंटोर्स, हमारा ये प्रॉब्लम हो जाता है. We forget the self of the other. Self is an abstract entity. And self का जो नीड है ना, वो फिजिकल फैसिलिटी कभी पूरा नहीं कर सकता है. बॉडी का नीड टेम्पररी इन नेचर होता है. आई एम हंग्री राइट नाउ. इफ आई एम हंग्री राइट नाउ, you will give me food. Now I am very hungry, so you will give me a lot of food. But आप सोच के देखिए, ultimately that food is quantifiable. That means maybe one person eats 1 roti, another person eats 10 rotis. But whether it is 1 or 10, end of the day it is quantifiable. It can be measured. Self में अगर हम आएंगे, तो सेल्फ का नीड क्या है? सेल्फ का नीड होता है फीलिंग्स. फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट. जब मैंने आपको बोला आपके घर में किसी को नहीं खाना बनाना आता, गेस्ट को आप लोग अच्छे से नहीं देखते, आपको क्यों बुरा लगा? आपको बुरा लगा बिकॉज यू फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड. नाउ हाउ मच ऑफ रिस्पेक्ट डू यू नीड? You need 1 respect or you need 10 respects? It is a very awkward question to ask, isn't it? I hope you are able to see the difference between the needs of self and body. So body needs physical facility. It can be quantified and it is temporary in nature. I am very hungry, you give me food, I eat the food and I am done, I am satisfied. You know, my favorite food is sandesh. How many sandesh can I eat? Maybe 1, maybe 10, at the most maybe 12. The 13th sandesh you give me, what happens? That same sandesh now makes me feel sick. I don't feel like eating it. But if you force me and I eat it, I end up feeling sick. Now what has happened? My need for food, for water, that means the needs of the body are temporary in nature. You fulfill them and they are over. Yes, they will come back again. You know, at night again I will feel hungry. But for the time being I am done. This does not happen at the level of self. आपको रिस्पेक्ट कब चाहिए? सुबह 9 बजे चाहिए, रात को 9 बजे चाहिए, पूरा दिन चाहिए? आप सोच के देखिए, आपको पूरा दिन चाहिए. एंड 9 बजे से 9 बजे तक आपको मैंने बहुत अच्छा खाना दिया, मैंने एसी चला के रखा, मैंने आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल चेयर दिया, मैंने उसके ऊपर कुशन लगा के दिया, मैंने आपको जूस पिलाया, मैंने आपको चाय पिलाई, मैंने बहुत कुछ किया. लेकिन वो 1 सेकेंड में मैंने आपको जो हर्टिंग सेंटेंस बोला ना, आपका डिसरिस्पेक्ट हो गया. कैन यू सी? सेल्फ कैन नॉट टॉलरेट अ स्मॉल ब्रेक ऑल्सो. सो नीड ऑफ द सेल्फ इज कंटिन्यूअस एंड नीड ऑफ द सेल्फ कैन नॉट बी क्वांटिफाइड. आई कैन नॉट से 1 किलो रिस्पेक्ट चाहिए या 2 किलो रिस्पेक्ट चाहिए. Physical facility can only satisfy the need of the body. Physical facility does not have the capability of satisfying self. अब self का need है respect. Respect आपको बड़ा घर से नहीं मिलेगा. Self का need है happiness. हैप्पीनेस आपको बड़ा पैकेज अर्न करके नहीं मिलेगा. वो आपको मिलेगा अगर आपके रिलेशनशिप्स ठीक ठाक हैं. मुझे ऐसा लगता है एज पेरेंट्स एंड मेंटोर्स, अगर हम लोग खुद सेल्फ एंड बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्शन करें और उसका डिफरेंस समझें, तो हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे मेंटीज, हमारे बच्चे,
हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्पाउसेस, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ बेटर हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर एंड ऑफ द लाइफ में वो जो एक सवाल आता है ना कि मैंने इतना बड़ा घर बनाया लेकिन मैं वो घर में अकेला हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे साथ नहीं रहना है। दैट मीन्स मैंने ये सब किसके लिए किया? ये क्वेश्चन एंड ऑफ द लाइफ में नहीं आकर अगर बिगिनिंग ऑफ द लाइफ में हम अपने बच्चों के सामने रख सकें तो मुझे ऐसा लगता है एज पेरेंट्स एंड मेंटर्स हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। सर, my presentation ends over here. If anybody has any questions or anything to ask, I am ready to take those questions. So over to you, sir. Okay, participants, ma'am is open. Ma'am has opened for question. So if anyone has any question, they can ask here now directly to ma'am. You just raise up your hand, unmute yourself, and ask the questions to ma'am. I hope it will send to the audience. मैडम, मुझे जो लगता है कि सब असल में सुन के मोहित हो चुके हैं, इन तक के और सवाल नहीं रहा। ठीक, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका आने के लिए और इतना बिजी शेड्यूल में भी टाइम देने के लिए। तो ये फ़ायदा रहा कि हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी थे हमारे साथ, वो लोग भी देखे सुने, और हमारे फैकल्टी मेंबर मेंटर्स भी थे, नाइस मैडम, और कुछ हॉस्टल वर्कर्स भी थे। अच्छा रहा मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एंड सपोज बाद में भी किसी का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बताइए, मैं जरूर उनका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू मैडम। नमस्कार एवरीवन, थैंक यू।